پور میں خاتون کی 8 بچوں سمیت ہیڈ پنج ند میں کودنے کی کوشش۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں نے خاتون اور بچوں کو بچا لیا۔ پولیس اہلکاروں نے خاتون اور بچوں کو کھانا کھلایا اور باحفاظت گھر پہنچا دیا۔ روہی نے 8 بچوں سمیت خودکشی کرنے والی خاتون کا گھر ڈھونڈ لیا۔ گھر میں نہ بجلی نہ کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، چولہا ٹھنڈا ہے۔ 5 روز سے گھر میں فاقے ہیں۔ خاتون بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکی، خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون کا نے ایسا بتایا ہے کہ 5 دن سے بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھایا۔ آپ کو بتاتے چلیں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ علی پور میں خاتون کی 8 بچوں سمیت ہیڈ پنج ند میں کودنے کی کوشش۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں نے خاتون اور بچوں کو بچا لیا۔ پولیس اہلکاروں نے خاتون اور بچوں کو کھانا کھلایا اور باحفاظت گھر بھی پہنچایا ہے۔ روہی نے متاثرہ خاتون کا، جس نے خودسوزی کرنے کی کوشش کی، اس کا گھر ڈھونڈ لیا ہے۔ گھر میں نہ بجلی نہ کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، چولہا ٹھنڈا ہے۔ 5 روز سے گھر میں فاقے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکی، اسی لیے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 5 دن سے بچے بھوکے ہیں اور کچھ نہیں کھا سکے۔ ہیڈ پنج ند پر آج یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مزید بات کریں گے، رانا عمران سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، بتائیے گا۔ بھوک افلاس کے باعث جو ہے گھر میں فاقے پڑ گئے تھے۔ بچوں کو بھوکا نہ دیکھتے ہوئے اس نے آج ایک فیصلہ کیا کہ بھی میں اپنی جان سمیت اپنے بچوں سمیت جو ہے خودکشی کر لوں گی، کیونکہ مجھ سے جو ہے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا سکتی۔ روہی نے خبر نشر کی اور اب جو ہے میں اس وقت اس خاتون کے گھر پہ موجود ہوں۔ آج سارا دن جو ہے اس خاتون کو ہم ڈھونڈتے رہے ہیں اور آخرکار جو ہے اس وقت ہمیں اس کا گھر مل گیا ہے۔ میرا کیمرامین اگر آپ کو دکھا سکے، یہ اس گھر کی دیوار نہیں ہے، یہ کھلے صحن میں پڑے ہیں۔ ان کے چولہے کی حالت آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو چولہا ہے، اس چولہے کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ کئی دن سے اس میں آگ نہیں جلی۔ یہ ان کا چولہا ہے، یہ کچن ہے ان کا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی یہ بالکل یہ بتا رہا ہے، اس کی حالت بتا رہی ہے کہ بھی کافی دن سے جو ہے اس میں آگ نہیں جلی، اس پہ جو ہے کوئی چیز پکائی نہیں گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار صاحب آج ایک ماہ غربت کے باعث پنجاب میں مظفر گڑھ کی تحصیل ہیڈ پنج ند کے مقام پر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ عمران خان صاحب اس حوالے سے نوٹس لیں، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ خدارا اس فیملی کے حوالے سے نوٹس لیں، ان کی حالت زار دیکھ کر جو ہمارا دل ہے۔ عمران سعیدی، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ نے عمران سعیدی ہمیں گھر تو دکھا دیا، متاثرہ خاتون سے آپ نے گفتگو بھی کی ہے۔ متاثرہ خاتون کا کیا کہنا ہے وہ بھی بتائیے گا۔ بالکل، ایک ماں جو ہے اپنے 8 بچوں سمیت ہیڈ پنج ند کے مقام پر جو ہے خودکشی کر رہی تھی۔ پولیس نے بر وقت جو ہے کارروائی کرتے ہوئے اس کو بچا لیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ بھی گھر میں جو ہے 5 روز سے جو ہے فاقے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کی بھوک نہ دیکھی گئی۔ بچے جب کھانے کے لیے کچھ مانگتے تھے تو ان کا رونا، ان کا چیخنا مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو میں نے آج فیصلہ کیا کہ میں جو ہے اپنے بچوں سمیت جو ہے جان کی بازی دے دوں، اپنی جان دے دوں، تاکہ جو ہے ان کے روز رونے سے جو ہے چھٹکارا مل سکے۔ میں نے جو ہے آج سارا دن جو ہے اس عورت کو، اس خاتون کو تلاش کیا، آخرکار جو ہے اس کا گھر جو ہے اب ہمیں مل چکا ہے۔ اسے جانتے بی بی دسو کیوں خودکشی کریں دے پہ ہوئے؟ بھوک، فاقہ، غربت، بے روزگاری، سب مسائل اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کتنی نہیں تو گھر کھاون پیون دی شے کوئی نہیں؟ 5 نہیں تو کچھ نہیں پکیا؟ کوئی چیز ہی نہیں پکی۔ کوئی ہمسائے، کوئی تھے ذمہ دار، کوئی رابطہ کتے نے؟ جی ہم اللہ بخش کو لوگوں نے ایک بازو کا تھوڑی ہیلپ کر دینے، دانے دے دینے، آٹا دے دینے، کئی ویلے سودے گھن کے دے دینے، بیا بالکل کوئی کہنا۔ بی بی یہ چھوٹے چھوٹے بال ہیں، اے تیرے لختے جگر ہیں، بچے ہیں، ہنے کو آج یہ فیصلہ کیتے ہوئے کوئی تو کو ڈر محسوس نہیں تھیا؟ اولاد نال بندے کو ڈھیر سارا پیار ہوندے تے ماں دی تا ایک اپنی شان ہوندی ہے، ماں اپنی اولاد نال اتنی محبت کریندی ہے، تسا ہنے کو گھنتے جڑا ہے ہنے دی جان گنویندے پیا ہوئے۔ انہاں دی چیزاں میرے کو برداشت نہیں تھینیاں۔
भूखलो रो दिन में कहते अम्मी खाना दे, अम्मी रोटी दे, अम्मी कोई चीज खावन को दे। मेरे को बर्दाश्त नहीं थी ना, मैंने को की दी गई है, मैं आप ही ले ले, अपने बच्चे ले ले। ये कोई फैसला की ना बच्चे हो से, न मैं हो से, न बच्चे चीख से, न मेरे को मंग से। घर में बिजली नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, छत नहीं है, दीवार नहीं है। अरबाब इख्तियार, इक़्तिदार ऐवानों में बैठे हुए लोग जो है, दिल जो है मेरा इस वक्त खून के आंसू रो रहा है यहाँ के हालात देखकर। मकामी इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुजफ्फर, इस हवाले से ताहाल उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं लिया, यहाँ पर विजिट नहीं किया। सारा दिन जो है ये मामला जो है हाईलाइट होता रहा। लोगों को पता था, छोटे छोटे बच्चों को पता था कि भी एक माँ अपने 8 बच्चों समेत खुदकुशी करने के लिए गई थी। वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब इस हवाले से नोटिस ले, इनकी गुर्बत, इनकी अफलास का नोटिस लें। इनके खानदान इन छोटे छोटे मासूम बच्चों पर तरस करें और इन खानदान की जो है कोई माली इमदाद करें। और इनके जो शोहर है, इनका जो बच्चों का छोटे छोटे बच्चों का जो वालिद है, उसको अच्छा रोजगार मुहैया करें, ताकि लोग जो है बेरोजगारी से, भूख से, अफलास से तंग आकर दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इमरान सईदी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर औलिया में बोसीदा सिविल लाइनों पर गड्ढे पड़ने का सिलसिला नहीं थम सका। मुल्तान चुंगी नंबर 9 पर वासा की सिविल लाइन धंसने से 25 फुट का गड्ढा बन गया। गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है, शहरी परेशान है। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा की जानिब से अहकामात के बावजूद सिविल लाइन की मुरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका है। शहर औलिया में बोसीदा सिविल लाइनों पर गड्ढे पड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चुंगी नंबर 9 पर वासा की सिविल लाइन धंसने से 25 फीट का गड्ढा बन गया है। गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है, जिसके सबब शहरी परेशानी का शिकार हो रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा की जानिब से अहकामात के बावजूद सिविल लाइन की मुरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। 25 फीट का गहरा गड्ढा बन गया है, जिसके सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बोसीदा सिविल लाइनों पर गड्ढे पड़ने का सिलसिला नहीं थम सका। चुंगी नंबर 9 पर वासा की सिविल लाइन धंसने से 25 फीट का गड्ढा पड़ गया है। मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, कहिएगा, गड्ढा ताहाल पुर नहीं किया जा सका, क्या मसला है? जी बिल्कुल इमरान, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये मुल्तान का दिल कहलाया जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी इसको जो है वो डिक्लेयर किया गया है। मगर इस मुल्तान के दिल में जो गड्ढे हैं वो पड़ना शुरू हो गए हैं। 24 घंटे के दौरान मुल्तान शहर की बात करते हैं तो 5 जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं। मेरे आंखों के अंदर नजर आने वाला ये गड्ढा जो है 25 फुट गहरा है, जो मुल्तान की बिल्कुल वस्त 9 नंबर पे जो है वो मौजूद है। लेकिन शहरियों की जानिब से काफी मुश्किलात का शहरियों को यहाँ से जो है वो सामना भी करना पड़ा है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर हुई है। मगर अभी तक जो है ये गड्ढा जो है वो नहीं भरा गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर वासा का सिर्फ एक अमला जो है वो मौजूद है, सिर्फ एक फर्द मौजूद है और कुछ जो रेत जो है वो डाली गई है यहाँ पर। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई है किसी भी किस्म की वासा की जानिब से वो ताहाल नहीं की गई, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना है। अगर 24 घंटों की बात करते हैं तो 24 घंटों के दौरान 5 गड्ढे शहर औलिया में अब तक पड़ चुके हैं, जिसमें मुस्तफा रोड, सूरजकुंड रोड और 9 नंबर चुंगी का ये जो मेन रोड है ये शामिल है, जिसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना। शहरियों का इस हवाले से शिकवा करना है कि पता नहीं ये रोड कब ठीक किया जाएगा, कब इस 25 फुट गहरे गड्ढे को भरा जाएगा, ये अभी तक सवाल ये निशान है। लेकिन ताहाल इस गड्ढे को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। वसीम, बेहतर कहिएगा, ये भी अचंभे की बात है कि इस पॉइंट को मुल्तान का दिल कहा गया है, मगर इस दिल पर इतना बड़ा सुराख है तो ये कैसे चलेगा निजाम, कैसे डिक्लेयर कर दिया गया इसको दिल? हर किसी शख्स के लिए और हर किसी कौम के लिए एक बड़ी खास अहमियत का हामिल होता है। लेकिन जो मुल्तान का दिल है अब उसमें सुराख जो है वो पड़ना शुरू हो गए और बड़े गहरे गहरे गड्ढे जो हैं वो पड़े हैं। आज 24 घंटों के दौरान 5 पड़े हैं। लेकिन जो ये इस वक्त जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ ये 9 नंबर का मेन रोड है जो कहलाया जाता है और बहुत ही ट्रैफिक दिन भर जो है वो यहाँ पर रहती है। इतना जो रोड होने के बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानी है वो सुस्त हो रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अभी भी ये जो गड्ढा है यहाँ पर मौजूद है, 25 फुट गहरा गड्ढा है, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर अमले की बात करते हैं, वासा की बात करते हैं तो वासा की जानिब से किसी किस्म की कोई जो काम है वो अभी तक नहीं किए गए और कारकर्दगी पर शहरियों की जानिब से
सवालिया निशान जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक रेत तो यहाँ पर आ गई है, लेकिन ये रेत कब इस गड्ढे में डाली जाएगी, ये एक सवाल है जो शहरी औलिया के बड़ा सवाल है जो कि शहरी औलिया के बासी उठा रहे हैं। वसीम शेहजाद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात यानी कि वज़ीर आला पंजाब का इलाका सैलाबी रेले की नजर हो गया। डीजी खान गाजी बेट गज्जा बहार सयाल पर सैलाबी रेला, मकीनों के साजो सामान पानी में बह गया। हजारों अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। बेट, बेतवाला, कोलांग और सुखेरा आराइया में मकान मुनहदम हो गए हैं। जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। खुराक की किल्लत है और मकीन इमदाद के मुंतजिर हैं। डीजी खान के बेत, गुजर बहार सयाल, बेट, बैत वाला, काला हंग और सखेरा अराई के मकीन सैलाबी पानी में फंस गए। बहुत सी बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग अपनी मदद आप के तहत बंद बांधते दिखाई देते हैं। डीजी खान के मुकाम पर तोनसा बराज से आने वाले पानी के रेले आने की वजह से बहुत सारी बस्तियां मुतासरा हुई। कालरा बस्ती में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त लोग अपने मकानों को, अपने घरों को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जो उनके पास है वो किया जा रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी जो है अपनी मदद आप, हर घर के जो अफराद हैं वो पानी को रोक रहे हैं। पानी की मिकदार बढ़ती जा रही है। डीजी खान के करीबी इलाका गुज्जा बहार सयाल में मजीद 5 लाख क्यूसिक पानी की आमद मुतवक्का है। महकमा इरिगेशन भारी मशीनरी की मदद से सिपर बंद बनाने में मसरूफ है। इस वक्त हम भेड़ के इलाके, मतलब है कि पेट है ये दरिया का, और इसको बनाने का मकसद है कि दरिया का जो फ्लो है वो आबादियों की तरफ मजीद ना बढ़े और यहाँ से आके टकरा के दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा और डाइवर्ट होके दोबारा से वो दरिया के रुख पर चलेगा। और इसके लिए मशीनरी जो है वो हैवी मशीनरी भी यहाँ पर लाई गई है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर काम कंप्लीट था। दूसरा बंद, अभी जो बंद सिपर नंबर 2 बंद है वो ठीक मेरे सामने बन रहा है और वहाँ पर भी काम जारी है तेजी से। सैलाबी पानी की वजह से कई बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जबकि लोग खुराक के लिए परेशान हैं। फ्लड आ चुके, असां जलील है जे पानी में माल ढोरें को चरा असां तंग थे वधे, जलील थे वधे। जनाब दी कोई हेल्प दी मेहरबानी थी वञे तो वाली भी ठीक है, न थी वे तो वाती अल्लाह वारे से। हुकूमत कोई साड़ी इमदाद करे, असां गरीब सवाल अल्लाह दे कोई का नहीं। गरीब है, निके निके बच्चे भुख मरदन, सवाब अल्लाह दे कोई को नहीं। सारा दरिया है जेड़े को माल भी लंघाने, खुद ही लंघाने। सैलाब की वजह से कई बस्तियां पानी में डूब गई। माल मवेशी भी मुतासिर हो रहे हैं। दरियाई किनारों पे आबाद इन लोगों का गुजर बसर जानवरों और मवेशियों के साथ होता है। तो इस सारी सैलाबी सूरत हाल में सबसे ज्यादा ये जानवर या मवेशी भी मुतासिर हो रहे हैं। सैलाबी इलाकों में सांप के काटने के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस पर महकमा सेहत ने ताहाल कोई इमदादी कैंप तक नहीं लगाया। डेरा गाजी खान में दरिया सिंध के किनारे आबाद इलाकों में जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। निचले दर्जे के सैलाब के दौरान ये सूरत हाल है तो 5 लाख क्यूसिक का अगर रेला आता है तो यहाँ सूरत हाल इससे मजीद खराब हो सकती है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। बक्कड़ से 4,50,000 क्यूसिक का रेला दरिया किनारों पर आबाद लोगों को ताहाल रेस्क्यू नहीं किया जा सका। लोग अपनी मदद के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे उसामा हैदर। बेला डैम से पानी छोड़े जाने और बलाई इलाकों में बारिशों के बाद दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त बक्कर के मकाम से 4,50,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरिया की मगरिबी जानिब से ताहल इनखला नहीं किया जा सका। मकामी आबादी का कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर है। फिलहाल तो हमें कोई सरकारी तरफ से कोई इमदाद वगैरह नहीं मिली। हम खुद अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे 10-15 हमारे घर से वहाँ पे वो डूब गए। कुछ सामान हमारा को दरबदर हो गया। कुछ हम सामान को निकाल के आए हैं, कुछ हमारा पानी के अंदर बीच है। सो कोशिश कर रहे हैं निकालने के लिए। बाकी सरकार की तरफ से हमें कुछ इमदाद कोई नहीं मिली। लोगों का कहना था कि 2 रोज से पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। ताहल किसी भी रेस्क्यू टीम ने उनसे राब्ता किया और न ही खाने पीने का सामान पहुंचाया है। जबकि इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 16 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। उसामा हैदर। 2 दिन की मुसलसल बारिश ने लिया की तहसील चुबारा में तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में 300 से ज्यादा कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। नवाकोट में बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लैया में 2 दिन की मुसलसल बारिश ने तहसील चौबारा में तबाही मचा दी। नवाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में 300 से जायद कच्चे घर जमीन बोस हो गए। मुतादिद खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इनका कहना था कि जमा पूंजी से बनाए गए घर बारिश की नजर हो चुके हैं।
412 ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, कोई सानू इमदाद, इमरान खान कोई सानू इमदाद करे। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से इमदाद समेत सर्वे के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मुतासिरीन ने हुकूमत से इमदाद का मुतालबा किया है। बारिश तूफानी है, जो मकान साढ़े कच्चे से गरीब बंदे हैं, डिग पे साढ़े सिर लकाउन जगह भी कोई, चलो बच्चे लाके बह जाइए टिकाने से। मेहरबानी करके गवर्नमेंट को साड़ी इमदाद करें। डिप्टी कमिश्नर अजफर जिया ने बताया कि बेघर होने वाले अफराद के लिए राशन और टेंट मंगवा लिए गए हैं, जल्द मुतासिरीन को फराहम कर दिए जाएंगे। बुलदार हुकूमत ने एक और तरीक साथ संग मील अबूर कर लिया। लिया के इलाके चुबारा में 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मुआहदे पर दस्तखत कर लिए गए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम तरीन 3.7 सेंट टैरिफ 10 अरब रुपए की सरमाकारी मंसूबे से नेशनल ग्रिड को 17 करोड़ 30 लाख यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। हुकूमत के महकमा तवानाई के पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड, मुतबादिल तवानाई तरक्की बोर्ड और जेनफा पाकिस्तान न्यू एनर्जी कंपनी के माबैन मुआहदे की तकरीब। वज़ीर-ए-आला ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में जिला लिया के इलाके चौबारा में 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। लेटर ऑफ सपोर्ट पर पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड के मैनेजमेंट डायरेक्टर, मुतबादिल तवानाई तरक्की बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जेनफा पाकिस्तान न्यू एनर्जी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने लेटर ऑफ सपोर्ट पर दस्तखत किए। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान, अरकान असम्बली गजीन अब्बासी, सादिया सुहेल, वजीर आला के मशीर डॉक्टर सलमान शाह, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तवानाई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला जेनफा पाकिस्तान के ओहदेदारान, चीनी कंपनी के माहिरीन और दीगर आला हुकाम इस मौका पर मौजूद थे। जनूबी पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बिजली की फराहमी मजीद होगी बेहतर। सूबे भर के 210 सरकारी अस्पतालों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत की जानिब से तवानाई की बचत के लिए बेशतर मंसूबे मुकम्मल और शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें सरकारी स्कूल और आला तालीमी इदारे भी शामिल हैं, जिन्हें शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके सालाना अरबों रुपए की बचत की जा रही है। दूसरी जानब अब 210 अस्पतालों को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का काम जारी है। महकमा तवानाई पंजाब की काबीना को भेजी गई एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके सालाना 3 अरब रुपए की बचत की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में 95 मेगावाट की कैपेसिटी वाले सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जिससे सालाना 173 मेगावाट बिजली पैदा होगी। सुबह भर में DHQ, THQ और टर्शियरी केयर अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। डेरा गाजी खान के कबाली इलाकों को मिलेंगी अब इमरजेंसी सर्विसेज की सहूलियात। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मोटर बाइक्स एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। डेरा गाजी खान साजिद जफरडाल की ज़ेरे सदारत सिटी पैकेज के तहत जिला डेरा गाजी खान 143 तरक्याती मंसूबों का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फरूक और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में हाईवेज, बिल्डिंग्स, लोकल गवर्नमेंट, PHA, पब्लिक हेल्थ, इनहार और दीगर महकमों के मंसूबों की पेशरफ के साथ साथ मुमकिन फ्लड के इंतजाम का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने कहा कि कबायली इलाकों में रेस्क्यू स्टेशन की फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। रेस्क्यू स्टेशन के लिए 4x4 4 एम्बुलेंस और 2 फायर व्हीकल की खरीदारी का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। कोहे सुल्तान के 7 ऊंचे मकामात पर टूरिस्ट रिजॉर्ट का तामीराती काम जारी है। 5 साइट्स में 4 बारथी, मुबारकी, गुलकी, मटचांडिया में टूरिस्ट रिजॉर्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। कमिश्नर ने कबायली इलाकों में अमन अमान के कयाम के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के 8 थानों की नई इमारतों की तकमील के लिए 30 नवंबर तक की हतमी तारीख दी है। खात्मे पंजाब दही रोड्स प्रोग्राम की स्कीमों की मुरम्मत और बहाली के लिए सिफारिशात सूबाई हुकूमत को रवाना कर दी गई हैं। कमिश्नर साजिद जफरडाल ने कहा कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, डेरा गाजी खान और लाहौर की निगरानी में 6 स्कीमों पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने PHA के तमाम 6 स्कीमों के लिए तमाम फंड्स जारी कर दिए हैं। मंसूबों में डेरा गाजी खान और तोनसा शहर के दाखिली खारजी मकामात को खूबसूरत किया जाएगा। दोनों शहरों की मौजूदा पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स की बहाली समेत 14 अहम चौकों की तज़ीनो आराइश की जाएगी। नवाबों के शहर में अब होंगे तरक्याती काम। डिवीजन भर की 233 स्कीमों के लिए 1175 मिलियन के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। भावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत कम्युनिटी डेवलपमेंट के तरक्याती मंसूबे बारे जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर मुजफ्फर खान सियाल, डिप्टी कमिश्नर भावलनगर शुएब खान जदौन और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान के साथ डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस नौशीन मलिक, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद वकास और मुतल्लिका महकमों के डिविजनल सरबराहान ने शिरकत की। कमिश्नर का कहना था कि तरक्याती मंसूबों को बरवक्त और आला मेयार के मुताबिक पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इंतजामी अफसरान तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड विजिट तवातर के साथ करें। तरक्याती मंसूबों में गैर जरूरी अल्तवा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों की तामीर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 233 स्कीमों के लिए 1775 मिलियन के फंड मुख्तस किए गए। तरक्याती प्रोग्राम के दूसरे मरहले के लिए 284 मिलियन फंड जारी किए गए। जिला भावलपुर स्पेशल पैकेज की 80 तरक्याती स्कीमों के लिए 998 मिलियन रुपए के फंड्स का इजरा किया गया है। प्रोग्राम के तहत डिवीजन के 617 तरक्याती मंसूबों के लिए 1050 मिलियन रुपए के फंड जारी किए गए हैं। प्रोग्राम के तहत डिवीजन के 562 तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 945 मिलियन रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं।
उधर डीजी खान के कुम्हार वाले चौक के करीब सीवरेज का पानी जमा होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के दिल चुंगी नंबर 9 पर वासा की सीवरेज लाइन धंसने से 25 फुट गहरा गड़ा बन गया। गड़ा पड़ने से सड़क का बड़ा टुकड़ा गायब हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। एमडी वासा का कहना है कि वासा मुल्तान की 1100 से ज्यादा किलोमीटर तवील सीवरेज लाइनें मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो चुकी हैं। बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली के काम का आगाज कर दिया गया है। शहर की तकरीबन 1100 किलोमीटर से ज्यादा जो सीवर लाइंस हैं वो आउटलिव्ड हैं एज पर नेस्पा की रिपोर्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है, उस पे 3-4 साइट्स पे हमने काम शुरू कर दिया। मुस्तफा रोड है, सूरज कुंड रोड है। मुस्तफा रोड पर भी सीवरेज लाइन धंसने से ट्रक इसमें फंस गया। अंसारी चौक, न्यू मुल्तान, सूरज कुंड रोड पर भी गड़े नमूदार हो गए। एमडी वासा का कहना था कि सूरज कुंड रोड और मुस्तफा रोड पर काम का आगाज कर दिया गया है। बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली के हवाले से कंट्रैक्टर ब्रीफिंग देंगे। 9 नंबर चुंगी वाला जो काम है ये तो हमने मतलब कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज कर दिया है। कल से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। मुस्तफा जो टाउन वाला जो काम है वो मैं अभी जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी कल से शुरू करवा देंगे। एमडी वासा का कहना था कि गढ़ों को फौरी मुरम्मत के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। नकासियात के मसाइल का हल तरजीहात में शामिल है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। 1 माह से मंजूराबाद रोड मुल्तान का सीवर सिस्टम खराब है, जिसकी वजह से अहम शाहराएं जोहड़ का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों का कहना है गंदे पानी के बायस बीमारियां फैलने का खदशा है। नाज़िर मंजूराबाद रोड के हैं, जहां सड़क पर गंदा पानी जमा होने पर शहरी सरापा एहतजाज है। शहरियों का कहना है कि 1 माह कबल बंद होने वाले सीवरेज सिस्टम को ताहाल ठीक नहीं किया गया। मुलाजिम अपनी जगह सोए हुए हैं, सफाई वाले अमला अपनी जगह सोया हुआ है, गटर या बंद देखने दुनिया परेशान है, बच्चियां जाती हैं स्कूल परेशान है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं, जबकि जनाजे गुजारने में भी मुश्किलात का सामना है। दराज से लोग पानी गंदे पानी में गिरे हुए हैं, बीमारियां फैल जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। 18 लाख का ठेका हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा बदतर हालात हो गए। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया होश के नाखून ले, अगर पानी चंद दिन और खड़ा रहा तो बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तलबा की यूनिवर्सिटी पहुंचने की मुश्किल आसान हो गई। यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट स्क्वाड में 10 नई बसें शामिल हो गई हैं। नई बसें सादिकाबाद, जाहिर पीर, खानपुर और राजनपुर के रूट्स पर चलाई जाएंगी। फरीद यूनिवर्सिटी का तलबा को यूनिवर्सिटी लाने और ले जाने का मसला हल हो गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर की काविशों से नई 10 बसें यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट के स्क्वाड में शामिल हो गई। नई बसों को दूर दराज के इलाके सादिकाबाद, खानपुर, जाहिर पीर और राजनपुर तक चलाई जाएगी, ताकि तलबा को तालीम हासिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट का मसला न हो। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर जो नई बसेज आई हैं, इसके जरिए काफी सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाएंगे। जो पहले मुश्किलात थी, पुरानी बसेस थी, टाइम ज्यादा लगता था, अब एफिशिएंट रिसोर्स हमें मिला है। इंशाल्लाह इससे ज्यादा कैपेसिटी के स्टूडेंट मूव कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी तलबा ने नई बसों का इजाफा खुश आइंद करार देते हुए कहा कि पुरानी बसों में सफर एक कठिन मरहला होता था। बसें कम होने की बिना पर दकम पेल भी मामूल बन चुका है। अब नई बसों का इजाफा इनके लिए आसानी लाएगा। पहले वाली बसेस थी ना, वो रेंटेड बसेस थी और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत कम थी। यूनिवर्सिटी की काफी सारी बसेस आ गई और इनकी खुद की यूनिवर्सिटी ओन बसेस हैं, तो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और 10 न्यू बसेस, तो जैसे न्यू बसेस हमारे पास आई हैं यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी हो गई है, एक उनके लिए इजीनेस भी हो गई है। जैसे कि पहले बसेस बहुत कम थी, तो स्टूडेंट्स जो थे वो ऐसा था कि उनको वेट करना पड़ता था। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने किराए की बसों का इस्तेमाल छोड़ा और 34 लाख रुपए माहाना किराए की मदद में अदा करने की झंझट से जान छुड़ा ली। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम अजला से रेवेन्यू जमा करने के लिए नए टारगेट्स की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान मार्च कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम्स को जल्द मुकम्मल करने और शहर की खूबसूरती के हवाले से भी इजलास में फैसले किए गए। भावलपुर जिला को ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने पर सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इसी हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से तमाम अजला को नए रेवेन्यू टारगेट्स की हिदायत कर दी है, जिसके मुताबिक भावलपुर को नए टारगेट्स दिए गए हैं। इन रेवेन्यू टारगेट्स जमा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च कहते हैं कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को डेवलपमेंट स्कीम्स मुकम्मल करने का कहा गया है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये डायरेक्शन है डी साहब की कि विद इन नेक्स्ट 15 डेज जो हमारी
डेवलपमेंट स्कीम्स कुछ नामुकम्मल हैं, उनको जो है अगले 10 से 15 दिनों में मुकम्मल किया जाए। उसके साथ साथ जो शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो है वो एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च ने कहा है कि भावलपुर शहर की खूबसूरती के हवाले से भी इजलास में फैसले लिए गए। अर्बन फिक्सिंग का फायदा उठाया जाए और ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। ग्रीन बेल्ट को जो है वो मजीद एस्टेब्लिश किया जाए, मजीद पौधे लगाए जाए और फ्लावरी जो है वो प्लांट्स वाला वहाँ पे लगाया जाए। और जो जैसा आपने देखा कि आजकल अर्बन फ्लडिंग का जो है वो सीजन चल रहा है, बारिशें हो रही है साथ साथ, उसके हवाले से था कि जो सीवरेज सिस्टम है उस जिन जगहों पे चौक है तो उसको स्पेशल मेजर्स के तौर पे जो है वो उनको अगले 1 से 2 दिन में हम उसको ठीक कर लें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च ने बताया कि तहसील अहमदपुर के सीवरेज और खूबसूरती को बेहतर करने के हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर खास तवज्जो दे रही है। रोही चोलिस्तान में जमीन के अलॉटमेंट के लिए प्रोसेस जल्द मुकम्मल किया जाए। एमडी चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर ने कमेटियों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी। को जमीन की अलॉटमेंट का प्रोसेस जारी है। कोरोना के बाइस सुस्त रवि का शिकार होने वाले काम को तेज कर दिया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर राना सलीम अहमद खान कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटियों के सरबराहान को स्क्रूटनी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ताखीर को कोताही समझा जाएगा। हुकूमत इस सिलसिले में कोई कोताही और तसाहुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको बराह करम जल्द अज जल्द करें, उसका शेड्यूल अखबारों में शाया करें, मुश्तरी मनादी कराएं, रोजनामचा वाकयाती में रपट दर्ज कराएं और जो कमेटी है वो बाकायदा जलसा आम करके स्क्रूटनी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। राना सलीम अहमद खान का मजीद कहना था कि पंजाब सरकार जमीनों की अलॉटमेंट के मामले में संजीदा है। उम्मीद है रवां साल अलॉटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अलॉटमेंट के लिए 64,000 लोगों ने दरख्वास्तें दे रखी हैं। स्क्रूटनी के बाद कामयाब दरख्वास्त गुजारों को 12.5 एकड़ ज़राई अराज़ी दी जाएगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतल लशारी। महकमा ज़राअत पंजाब ने कपास का मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए फसल की निगहदाश्ती अमूर में मजीद बेहतरी और तेजी लाने के लिए ज़राई माहिरीन को मुतहरिक कर दिया। महकमा ज़राअत पंजाब के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़राई माहिरीन को हिदायत जारी की गई है कि वो अपने जिम्मे कपास वाली तहसीलों में पहुंचकर फसल पर हमला आवरों और बीमारियों की पहचान, तदराक और मैनेजमेंट के सिलसिले में काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई करे। कपास की फसल इस वक्त एक नहायत अहम मरहला से गुजर रही है। इस मरहला में निगहदाश्ती अमूर बारे जो सरगर्मियां हैं वो मजीद तेज कर दी गई हैं। नवीद असमत कालू ने बताया कि ये इकदाम ज़राई जहरों के सही और बरवक्त इस्तेमाल से बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं। कपास की साफ चुनाई के बारे में काश्तकारों को रहनुमाई की भी हिदायत दी गई। उन माहिरीन को रोजाना की बुनियाद पर अपनी सरगर्मियों की रिपोर्ट एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स को भिजवाने की हिदायत की गई है। हमारे यूनिवर्सिटियों के एक्सपर्ट्स हैं, एंटोमोलॉजिस्ट, उनकी भी ड्यूटियां जो है ना कपास के काश्त के इलाकों में लगाई गई हैं ताकि वो काश्तकारों की बेहतर रहनुमाई करें और जो पैदावारी हदफ है वो बासानी हासिल किया जा सके। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब की कोटन जोन में तायुनात ज़राई माहिरीन को शोबा तौसी और पेस्ट वार्निंग के मकामी स्टाफ को हर मुमकिन मदद और तकनीकी रहनुमाई फराहम करने की हिदायत की गई। मुतल्लिका इजलास डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी को पाबंद किया है कि वो तायुनात ज़राई माहिरीन को जरूरी सहूलियात फराहम करें। बहावलपुर समेत पूरे सरायके वसे में बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि बारिश के बाद फसल को बीमारियों से बचाना सबसे अहम मरहला है। अतहल अशारी की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर समेत सरायके वसेब में होने वाली बारिशों ने कपास की फसल के लिए खतरे की घंटी बजा दी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी कहते हैं कि मजीद बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुँच सकता है। अब कपास की फसल भरपूर फ्रूटिंग के मरहले में है, तो इस मरहले में अगर हब्स होता है और ज्यादा बारिश आती है तो वो हमारा खदशा है कि हमारी कपास की फसल को नुकसान पहुंचाए। तो इसके लिए ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि जब तक हमारा ये बारिशों का मौसम है तो फसल को पानी बहुत ही सोच समझ के और मौसमी पेशीनगोई को सामने रख के लगाएं। ज़राई माहिरीन का कहना है कि काश्तकार बारिश का पानी फसल से फौरी निकालें। बारिशों के बाद कपास की फसल पर जेस्ट और गुलाबी सुंडी का हमला बढ़ सकता है, इसलिए काश्तकार अपनी फसल का बाकायदा मुशाहिदा करते रहें। ज्यादा बारिशों की सूरत में फौरन से पानी के इनखला की कोशिश करें और इसके अलावा जब बारिश ज्यादा होती है तो हमारे जो पेस्ट हैं उसमें से वाइट फ्लाई का तो और थ्रिप्स का अटैक तो कम होगा, लेकिन जेसेड का अटैक बढ़ने के खदशात हैं। और उसके साथ साथ ज़राई माहिरीन का कहना है कि मजीद बारिशों के बाद जिसकी सूरत हाल में कपास का टिंडा और फूल गिरने का खतरा होता है, काश्तकार ऐसे मौसम में फसल को पानी लगाने से पहले बारिश की सूरत हाल का जायजा लें। कैमरामैन शाह सकलैन हैदर के साथ अतर अशारी, बहावलपुर।
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کیمپس رحیمیہ خان میں اساتذہ کی تعیناتی کے بعد تقرری سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ احوال بتائیں گے عاصم صدیق۔ اقبال اوپن یونیورسٹی نے رحیم یار خان میں طلباء کی سہولیات کے لیے 160 اساتذہ کی تعیناتی کی۔ اساتذہ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے MNA جاوید اقبال وڑائش نے تقریب میں تقرری لیٹر تقسیم کیے۔ MNA جاوید اقبال وڑائش کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں تعلیم کے میدان میں بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں، نئی زرعی یونیورسٹی سمیت بڑے تعلیمی ادارے بنائے جا رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے تحریک انصاف کی اور ہمارا کپتان، اس کی اولین ترجیح ہے تعلیم، اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے ایریا۔ ساؤتھ پنجاب میں ایک تعلیمی یونیورسٹیوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم کورونا سے باہر آئے ہیں تو پورے شہروں میں، خاص کر رحیم یار خان میں اور جتنے بھی یہاں کے بیکورڈ جو علاقے تھے جن کو پہلے توجہ نہیں دی گئی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تعلیم کے متعلق بہت اچھے اقدام گورنمنٹ سوچ رہی ہے۔ ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر عدنان اختر کا کہنا تھا کہ وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویژن میں طلباء کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نئے اساتذہ کی تعیناتی سے بہترین تعلیمی معیار ملے گا۔ حکومت خاص طور پہ جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے جنوبی پنجاب پہ اور یہاں کے لوگوں پہ، اور یہاں پہ تعلیمی جو استعداد ہے لوگوں کی بڑھانے کے لیے، تو اسی سلسلے میں ہمارے وی سی صاحب بھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر پروفیسر ضیاء القیوم صاحب، ان کی ہمیں خاص انسٹرکشنز ہیں کہ ہمیں جو بھی چیز کی ضرورت ہو، ہم اسٹوڈنٹس کو جو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نئے مقرر کردہ اساتذہ میٹرک سے لے کر پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرام کے طلباء کو لیکچر دیں گے۔ رحیم یار خان میں شیخ زید ہاسپٹل کے سربراہ پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر مسعود الحق کا اپنی پریکٹیکل زندگی کا آخری روز، ریٹائرمنٹ کے آخری روز پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طارق احمد اور MS ڈاکٹر آغا توحید نے ان کی خدمات کو سراہا۔ زندگی کے نئے سفر کے آغاز پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پولمونالوجی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر مسعود الحق اپنی زندگی کے 16 سال شیخ زید کو دینے کے بعد آج ریٹائر ہو گئے۔ ان کے ہسپتال کے آخری روز ان کے ساتھی ڈاکٹرز اور جونیئر ڈاکٹرز کی جانب سے ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ ایک کمرے سے شروع ہونے والا پولمونالوجی کا شعبہ ان کی محنت کی وجہ سے ایک ڈپارٹمنٹ بنا۔ پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر طارق احمد کا کہنا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود الحق کی خدمات کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ ان کی شعبہ طب میں خدمات بے شمار ہیں۔ طبی ریسرچ جنرل میں ان کی ذاتی دلچسپی سے کالج نے بڑا فائدہ حاصل کیا ہے۔ شیخ زید ہاسپٹل کے روح رواں رہے ہیں۔ 2006 سے وہ اس ادارے سے وابستہ ہیں اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ TB، چیسٹ ڈیزیزز، پلمونالوجی اس کی سہولتیں لوگوں کو فراہم کرنا، اس کے لیے بہترین انہوں نے ٹرینیز اپنے ان کو ٹریننگ دی ہے اور وہ انتہائی ماہر اساتذہ انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ آغا توحید کا کہنا تھا کہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود الحق کے 16 سال شیخ زید کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔ ہمارا یہ جو پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی اور آج یہ ماشاءاللہ پنجاب کے تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کا ایک بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے۔ کوشش کریں گے کہ ان کی کمی نہ محسوس ہو، لیکن بطور پروفیسر جو مسعود صاحب کی یہاں کنٹریبیوشنز ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود الحق کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ اپنی طب کی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ پوری کوشش کی دیانتداری کے ساتھ جس طرح کر سکتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے جب میں پیچھے مڑ کے دیتا ہوں تو ایک سیٹسفیکشن ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا اس کے جو ثمرات ہیں وہ علاقے میں ہیں، نہ صرف شیخ زید میں بلکہ آس پاس کے جیسے تحصیل ہے، ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں سے ٹرینڈ ہیں۔ ڈاکٹر کے حیثیت سے تو میں پریکٹیکلی تو ریٹائر نہیں ہوتے ڈاکٹر، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہماری مطلب علاقے میں بھی یہاں بھی سروسز تو جاری رہیں گی انشاءاللہ، تو باقی تو جتنا شکر اللہ کا ادا کریں اتنا کام ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود الحق نے ہسپتال کو اپنی خدمات بھی پیش کی کہ شیخ زید ہسپتال میں ڈاکٹروں کی تربیت سمیت طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے جب بھی ضرورت ہوگی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خدمت سر انجام دیں گے۔ پاکستان لائنز یوتھ کونسل کے زیر اہتمام TB کے مرض کو روکنے کے لیے ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گی علشبہ آصف۔ کے مرض کو روکنے کے لیے پاکستان لائنز یوتھ کونسل کے تحت نجی ہوٹل میں ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی سیشن میں سندھ اور پنجاب کے فیلڈ افسران کو TB سے بچاؤ کے طریقے بتائے گئے اور 32 افسران کو ٹریننگ دی گئی۔ بیسیکلی یہ میٹنگ سندھ اور پنجاب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے
اس لیے کرنے کی کوشش کی گئی کہ کورونا کے دنوں میں ہم ٹی بی کے جو پیشنٹس ہیں اور تمام چیزیں اس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے. تو جو گورنمنٹ کی ریکمینڈڈ ایس او پیز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ٹی بی کے جو پیشنٹس ہیں ان کو کس طرح بہتر طریقے سے سرو کر سکتے ہیں. پروگرام مینیجر ڈاکٹر قاسم محمود کا کہنا تھا کہ کورونا کے ساتھ ساتھ ٹی بی کو ختم کرنے کے بارے میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف ٹی بی کا خاتمہ ہے. اور پاکستان میں اس وقت اینولی 5,10,000 مریض ہیں جو کہ ٹی بی کے مریض ہیں، جس کے اندر سے 3 لاکھ کی ہر سال ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے اس وقت لوگ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں ہیں، تو چونکہ وہ ایک کلوز کمیونٹی کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو ٹی بی پھیلتی ہے. تو ہمارا پرپز اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کورونا سے بھی اور ٹی بی سے بھی اس سچویشن کے اوپر کیسے اویئرنیس دیں. ٹی بی ایک ایسا مرض ہے جو ایک سے دوسرے میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، تو اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اس پروجیکٹ جو ہے، اس پروجیکٹ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اویئرنیس مل رہی ہے. ریجنل کوارڈینیٹر انصار علی کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم عام عوام کو بھی بتا سکیں کہ ٹی بی جیسے خطرناک مرض سے کیسے بچا جا سکتا ہے. عام شہریوں میں جب تک آگاہی نہیں پہنچائی جائے گی تب تک اس مرض سے چھٹکارا نہیں ملے گا. اس لیے ہم فیلڈ افسران کو ٹریننگ دے رہے ہیں. کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ الشفا آصف، ملتان. سرگودا کے شہینوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. طالب علموں نے بغیر ڈرائیور چلنے والی کار تیار کر لی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. پاکستان میں اب گاڑی کو بغیر ڈرائیور کے بھی چلایا جا سکتا ہے. یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس کے طلباء کریم علی اور معاذ اختر نے بغیر ڈرائیور چلنے والی گاڑی تیار کر لی. گاڑی کو موبائل ایپ کے ذریعے نہ صرف چلایا گیا بلکہ لائٹس آن آف، گیئر چینج، بریک، ٹرنر سمیت دیگر فیچرز بھی بآسانی استعمال میں لائے گئے. سرگودا کی شاہراہوں پر بغیر ڈرائیور کے دوڑتی کار شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی، جسے دیکھ کر شہری حیران ہو گئے. سر یہ اس کا کنٹرول، لائک اس کی اگنیشن، ہارن، اس کا سٹیئرنگ وغیرہ، اس کا ٹرانسمیشن، کلچ اور ایوری تھنگ جو ہے نا جو نیسیسری ہے گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے. طالب علموں کریم علی اور معاذ اختر کا کہنا تھا کہ وہ پروجیکٹ کے لیے کچھ منفرد کرنا چاہتے تھے. 8 ماہ کی انتھک محنت کے بعد انہوں نے یہ شاہکار تیار کیا ہے. اس میں ہم نے مل جل کے اپنا کام کیا ہے. 7-8 ماہ ہمارے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں لگ گئے ہیں. درمیان میں کافی مشکلات ہماری آئی ہیں تو لیکن ہم نے اس کو مل کے سالو کیا. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ہمارا کمبینیشن تھا تو آدھا کام ڈیوائڈ کر کے ہم نے دونوں مل کر کام کر لیا. اور دونوں طالب علم ٹیکنالوجی میں پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے کے لیے پرعزم ہیں. سرگودا کے شاہینوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اور یہاں کے طالب علموں نے یہ ثابت کر دیا کہ بغیر ڈرائیور کے بھی گاڑی کو چلایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین تنویر حسین کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا